دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اسی مقصد کے تحت کہ دنیا میں الحاد میں کمی ہے اور دوسرے اہم ترین موضوعات جن پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور یہ میرا ایک اہم فریضہ میں اپنے لیے سمجھتے ہوئے یہ ویڈیو اور یہ چینل دونوں بنا رہا ہوں. آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک میرے خیال سے آپ نے تھمبنیل میں دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا. واٹ آئی گونا ٹو ایکسپلین. فرسٹ آف آل میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا دوسرا چینل ہے اور اس سے پہلے بھی ایک چینل میرا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ڈفرینس آف ایتھیزم اینڈ ورشپ ریلیجن، ویدر اٹ از مونوتھیزم اور پالیتھیزم، اس پر بعد میں بات کریں گے. اگر اس بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہے، اس کے ڈفرینس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہے، تو یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی لائف کی بیسس کیا ہیں. بٹ اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہوئے میں اپنے فرض سمجھتا ہوں کہ کچھ سائنٹیفک پروف کے تھرو جو میرا ریلیجن ہے اسلام، اس کو میں پروف کر دوں. اور بے شک اسلام ایک 100% سائنٹیفک اوتھینٹک ریلیجن ہے جو کہ ہر طریقے سے ثابت ہے. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو دوسرے جو نان مسلمز ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے وہ پالیتھیسٹ ہوں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ مسلم ہو جاتے ہیں، جس میں ابھی ایک واقعہ میں آپ کو سنانے بھی جا رہا ہوں. اور یہ ساری چیزیں بہت سائنٹیفک ہیں، آپ خود بھی جا کے ریفرنسز کو چیک کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں ایک اہم ترین موضوع پر. پہلے جو میرا موضوع ہے کہ the main topics which I want to explain in the first part of the video, Islamic 100% authentic book یعنی قرآن اسلام میں 100% authentic book مانی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن is the word of Allah. جی، قرآن is the word of Allah، بے شک جس میں بہت سارے پروف دے سکتا ہوں ایزیلی، بٹ ٹائم شارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے. قرآن از دا ورڈ آف اللہ، جس میں نمبر 1 ٹاپک آتا ہے دا ڈیڈ باڈی آف دا فرعون. فرعون کی لاش کا جو معاملہ ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے فرعون کی لاش ڈسکور ہوئی، اور فرعون کی لاش آلموسٹ 3200 to 3300 ایئرز اولڈ اکارڈنگ ٹو دا سینئر ریسرچر اینڈ سائنٹیفک تھیوری جو انہوں نے لیب ٹیسٹنگ کے ذریعے بتائی. اس وقت میرے سامنے ایک پوری ایک ریسرچ کھلی ہوئی ہے اور اسی میں سے دیکھ کر میں آپ کو چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. ڈاکٹر میورس کا نام اگر آپ لوگوں نے سنا ہو، جو سائنس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو انجینئرنگ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل والے زیادہ اس چیز کو شاید جانتے ہوں. ڈاکٹر میورس بیوسیل ایک فرانس کے ایک سرجن تھے جنہوں نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کری. انہوں نے ایک بک لکھی ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس. یہ ایک کافی اچھی بک ہے اور اس کا ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بک میں نے سچی بات ہے کہ پوری نہیں پڑھی، لیکن میں اس بک کا ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں اس بک میں بہت اچھی ہیں. ڈاکٹر میورس ریسرچ کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ لاش 3200 to 3300 ایئرس پرانی ہے. تو ڈاکٹر میورس کے ساتھ کچھ پارٹنرز ہوتے ہیں جو ان کو یہ بتاتے، جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں میڈیا کو، تو ان کے کچھ پارٹنر میڈیا ٹاک کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بات پتہ ہے، قرآن میں ایک ڈسکشن ہے اس بارے میں، جو مسلمز کی ایک بک ہے اس میں ایک ڈسکشن ہوتی تھی جس پہ پہلے لوگ ہنستے تھے، لیکن اب مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کو، یعنی ایک بادشاہ تھا کوئی فرعون 3300 یا 3200 سال پرانا، تقریباً میکسیمم 3500 ایئرز اولڈ. تو وہ ایک لاش کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو پریزرو کر دیں گے اور یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے گا. اس سے پہلے لوگ ہنستے تھے کہ کون سی لاش، کہاں کی لاش، لیکن اب جب یہ لاش ڈسکور ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں ڈاکٹر میورس بیوسیل کو. تو ڈاکٹر میورس تھوڑے سے حیران ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ریفرنس لا کے دکھاؤ. ظاہر سی بات ہے، ہر جو بھی ایک صاحب شعور انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایویڈنس دکھاؤ، پروف دکھاؤ، تاکہ میں اس چیز کو جان سکوں، نہ کہ انا میں آ کے کہ اویس
मुल्हिद की तरह एक थीस्ट हैं, उनके बारे में अभी मुझे सही से उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उवैस करके कुछ उनका नाम है, ठीक है। तो मिस्टर म्यूरिस कहते हैं लाइए मुझे दिखाइए। तो कुरान में ये मेंशन है, कुरान की आयत में, कि रिमेंबर द टाइम व्हेन वी पार्टेड द सी टू मेक वे फॉर यू एंड लेट यू पास सेफली थ्रू इट एंड देन ड्राउन फरोज पीपल बिफोर योर वेरी आइज। अगर इसकी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन बताऊं, अरबिक में नहीं पढ़ रहा क्योंकि अरबिक के लिए वज़ू होना ज़रूरी है, जो कि मेरा नहीं है। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को शक किया और तुम्हें निजात दी और तुम्हारी निगाहों के सामने फ़िरऔन को गर्क कर दिया। ये बात इसी टाइप के वाक़यात बाइबल में भी मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि बाइबल भी एक अब्राहमिक रिलीजन है और बाइबल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ये बातें डिस्कस्ड हैं। डॉक्टर म्यूरिस हैरान हो जाते हैं और उनका एक पार्टनर बताता है कि कुरान में इसकी प्रिजर्वेशन से रिलेटेड भी बताया जाता है। लिसन दैट आया उन्होंने नैरेट की नहीं, बल्कि ये बात मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने डॉक्टर म्यूरिस के बारे में बताया। अब वो आयत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजार दिया तो फ़िरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी की और ज्यादती करते हुए उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब फ़िरऔन गर्क होने लगा तो कहने लगा मैं ईमान ले आया कि इस ज़ात के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमानों में से हो गया हूँ। तो जब ये आयत मैं एक इंडियन के हिंदू को बताई कुछ अर्से पहले, जो कि सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड था, तो उस हिंदू ने मुझे जवाब दिया कि कितना जालिम है तुम्हारा अल्लाह कि उसको डिबो ही दिया, उसने अगर बात नहीं मानी तो उसको डिबो दिया। अब जालिम है या नहीं है इस बारे में इंशाअल्लाह कभी बाद में बात करूँगा कि क्यों ये काम किया गया, ठीक है। तो लेकिन उसने दीदा या दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह है। वो भी बेसिकली हिंदू नहीं था, वो एक अथीस्ट था जो कि हिंदू से अथीस्ट हुआ। एक बुक है जो कि एक फिलोसोफर ने लिखी, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। इंशाल्लाह उस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसकी बहुत अच्छे रिप्लाईज मैंने कलेक्ट किए हैं डिफरेंट जगहों से, ख़ुद भी अपनी थिंकिंग से मैंने निकाले, ठीक। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब सूरह अंबिया की आयत नंबर 92 सुनिएगा, ठीक है। बस आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद में, अब जो मैं बात कर रहा था ना इबरत वाली, कि इबरत का निशान बना देंगे, तो आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत की निशानी बने। अगरचे बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल रहते हैं। ये उन लोगों के बारे में जो कि डिस्कवरी से पहले लोग हंसा करते थे, अब बोलते थे कि क्या कौन सी लाश के बारे में बात कर रहा है, ये क्या समंदर में से जिंदा सलामत लाश निकल सकती है या नहीं। अभी इस बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर म्यूरिस परेशानी की हालत में वहाँ से रिसर्च करके निकल जाते हैं। बाकी स्टोरी रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा, कभी और इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी परेशानी की हालत में निकलता हूँ। उनका एक पूरा किस्सा है कि वो जाते हैं और सऊदीया में एक मीडिया टॉक होती है और वहाँ पे काफ़ी एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो उसमें जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो मुसलमान हो जाते हैं एंड में। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे मौजूद है, इंशाल्लाह कभी और डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी ये रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए। अब अगर एक साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला शख्स इस पर थोड़ा सा गौर करे, जो भी साइंटिस्ट हो या साइंस से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, तो ये आम शऊर रखने वाला तबका भी इस पर गौर करे तो उसको ये बात मालूम होगी कि अगर किसी इंसान की डेड बॉडी जो है ना और वो समंदर में रहे, तो उस इंसान की डेड बॉडी समंदर में रहने के कुछ अरसे बाद, सिग्निफिकेंट प्रोसेस के बाद, मैक्सिमम 5 साल 6 साल उसकी बॉडी गल सड़ के ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आपको बात नहीं पता हो तो आप एक काम करिएगा, आप पूरा दिन समंदर में या पानी में गुजारिएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी खाल जो होती है ना वो थोड़ा सा अजीब सी हो जाती है और सुकड़ती है आपकी खाल। तो अब क्या हुआ, अब ये जाहिर सी बात है 5 साल तो आप रह नहीं सकते, फारिग इंसान है नहीं, जाहिर सी बात है निकलना होगा और फिर खुद बहुत एक तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो एक लाश जो है जो कि हिल नहीं सकती, जो कि कुछ भी नहीं कर सकती, वो कैसे मौजूद हो सकती है? अगर कुरान वर्ड ऑफ क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड नहीं तो फिर 3000 साल पुराना वाकया कुरान में कैसे है?
अगर कुरान, अक्सर जो दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं वो बोलते हैं कुरान रसूल अल्लाह ने लिखा है, मोहम्मद ने लिखा है। अगर मोहम्मद ने लिखा होता तो उनको इतने पुराने, हालांकि उनको इल्म था, लेकिन इस वक्त बात ये नहीं है। बात यह है कि एक बंदे को इल्म नहीं हो सकता, इसका मतलब कि कोई ऐसी रिसोर्स है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो कि मतलब पहले से जानती है और हर चीज़ को पहले से अपने इल्म में रखा हुआ है जिसने, और जिसके हाथ में तमाम कुदरत है। बाय द वे डॉक्टर म्यूरिद ब्यूसल वही बात कि आज मुस्लिम है, और ये बात और ये किस्सा जो है ये अकल वालों के लिए एक निशानी है। नंबर 2, द एवोल्यूशन एंड द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड। आपने अगर छोटा से छोटा बच्चा से क्लास 7 क्लास मैक्सिमम 8 क्लास बिग बैंग के बारे में पढ़ता है। बिग बैंग ये एक थ्योरी है जो कि तकरीबन प्रूव्ड लॉ तक इसकी जो ऑथेंटिकनेस है वो है। आपने बिग बैंग जैसी बला का एक नाम जाहिर सी बात है ज़रूर सुना होगा। ये बेसिकली एक थ्योरी है जो 14 बिलियन ईयर अगो ओल्ड है। अब ये थ्योरी ओल्ड नहीं है, ये वाकया ओल्ड है, ठीक है। सपोज करें एक बॉल है, अभी चूंकि मैं इसको समझाने के लिए अभी ये तमहीद पूरी बांध रहा हूँ ताकि जब मैं आपको ये बात वाकया बताऊँ, ये थ्योरी बताऊँ तो आपको समझ में आ जाए। सपोज करें एक बॉल हो और उस बॉल के अंदर मैंने एक बॉम्ब डाल दिया, ठीक है, और वो बॉल ज़रा अच्छी बॉल हो। बैलून सपोज करने को नहीं बोल रहा, बैलून तो जाहिर सी बात है बहुत पतली चीज़ है। एक बॉल सपोज करना है, एक मोटी बॉल जिसकी स्किन थोड़ी मोटी हो, उसके अंदर, उस बॉल के अंदर मैं बॉम्ब डालूं और थोड़ी देर बाद वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। अब जब वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो उस बॉल के जो टुकड़े हैं वो दूर दूर जाएंगे। यानी पहले एक बॉल थी और अब वो दूर दूर चले गए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ब्लास्ट, ड्यू टू द एक्सप्लोजन। अगर किसी ने लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा हो तो उसने उसकी एप्लीकेशन में एक्सप्लोजन का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। यानी ओरिजिन में थी पहली चीज थी और उसके बाद चीज एक्सप्लोड हो गई, यानी डिस्प्लेस हो गई और बहुत पावर के साथ डिस्प्लेस हुई, ठीक है। और यकीनन जो उसके पार्ट्स होंगे वो दूर दूर जा रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे। अगर यही चीज हम जरा दुनिया में गौर करें और दुनिया में गौर करने के बाद हम इस चीज को देखें कि तमाम जो चीज़ें हैं स्पेस में वो दूर दूर जा रही हैं, दुनिया मुसलसल एक्सपेंड हो रही है। अगर इसको वापस से हम रिवर्स बैक करें तो यानी ये एक नुक्ता हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी तमीज़ इसलिए थी कि एक साइंटिस्ट ने जब भी स्पेस में जब चीज़ों को दूर जाते हुए देखा और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अगर समझ में नहीं आया तो जाए थोड़ा सा दोबारा बैक करें इस बात को और फिर समझने की कोशिश करें कि मैंने अभी क्या समझाया। बिग बैंग पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और जिसमें ऑर्थर एडिंगटन, एडविन हबल, आर्नो पेंजियस वगैरह जो भी जितने भी साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। अब आए कुरान पे ज़रा, और कुरान में जहाँ पे ये हाइपोथेसिस, कॉस्मिक हाइपोथेसिस के नाम से सॉरी, कुरान में हाइपोथेसिस नहीं है लेकिन ये एक जब स्टार्ट हुआ था तो इसको कॉस्मिक एग हाइपोथेसिस का नाम दिया गया था। और कुरान में एक चीज कहाँ मौजूद है, डू नॉट दोज हु डिसबिलीव सी दैट द हेवंस एंड द अर्थ वर क्लोज्ड अप मास देन वी ओपन देम आउट। ये बात जो अभी मैंने समझाई है, ये ओपन देम आउट वाली, ये आपको अभी शायद अब समझ में आ रही हो। एंड वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, और हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। विल दे नॉट बिलीव, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, ठीक है। और मेरा शायद ख्याल है अभी कुछ स्टार्टिंग में एक आयत आई थी, उसका मैंने रेफरेंस नहीं बताया तो अब मुझे याद नहीं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो क्या अब यही चीज़ मैं ज़रा उर्दू में भी आपको बता दूँ। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 और ये मैं सारी आयतें मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते, ये सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की। क्या वो हमारी इस खल्लाक़ी को नहीं मानते? अब ज़ाहिर सी बात है एक साइंटिस्ट, एक साइंस का इल्म रखने वाला इंसान क्यों नहीं मानेगा? अगर नहीं मानता तो यानी ये उसकी आना है।
और आयतुल्लाह शेख मुहसिन नजफी बड़ी अच्छी बात अपनी किताब अल कौसर में लिखते हैं कि अगर कोई इंसान अल्लाह की कुदरत को नहीं मान रहा, या अल्लाह को नहीं मानता, या वहदानियत पे यकीन नहीं रखता, या खुदा के होने पर या ना होने पर यकीन नहीं रख रहा, तो इसका मतलब वो उसके अपने अवामिल की वजह से, यानी वो एक तो रिसर्च नहीं कर रहा, ये भी उसका अपना अमल है, ठीक है। अगर वो अपने कुछ इसना अमाल ऐसे अंजाम दे दिए, उसका दिल ही मुर्दा हो चुका है, वो अब फिर कुरान में भी एक आयत है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस सूरह बकरा में आयत मौजूद है। तो फिर वही बात है ना कि अल्लाह ने उनके दिलों में मोहर लगा दिया है, नबी आप जितना भी कर लें वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो ये जो मैं एक छोटा सा मैं अपना एक हक़ीक़ी सा एक काम कर रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे मेरा कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस इन परसेंटेज से इल्हाद के ग्राफ में इंक्रीजिंग आ रही है, जिस इन्हेंसमेंट आ रही है, उसमें कुछ कमी लाई जाए। और बाज़ लोग चूँकि इतना कनेक्टेड नहीं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके ज़ाहिर सी बात है, अब ज़्यादातर लोग मादियत की तरफ जाते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी चीज़ें कबूल नहीं होती, वो कहते हैं यार कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी अल्लाह नहीं है, कोई भी यूँ नहीं है और वो नहीं है, तो फिर वो एंड में दीन से ही हाथ धो के बैठ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी तवज्जो दी नहीं। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि टाइम का कैसे अंदाज़ा लगाया गया कि ये इतनी पुरानी चीज़ है और इतना पुराना वाक़या है कि 14 बिलियन या जितने भी बिलियन, बेसिकली फिजिक्स में एक फार्मूला होता है, बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है, S=VT। अगर आपने वेलोसिटी की बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ इस वक्त में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इससे जो फार्मूला हमारे पास बनता है V=S/T, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जितना डिस्टेंस था, यानी चीज़ों का जितना डिस्टेंस हो चुका है और जितनी स्पीड से जा रही है उनका टाइम, और टाइम अगर निकालना है तो उनका डिस्टेंस निकालेंगे, उनकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रही है और उनका डिस्टेंस जितना हो चुका है, दोनों के आपस के रेशो से ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि टाइम कितना था, कितना टाइम से ये वाक़या हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा इस पर और गौर करें, सूरह ज़ारियात में आता हूँ मैं, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47, ये भी मेरे पास आ गई वरना मैं इसको बयान नहीं करने वाला था। एंड देन एंड द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद देयर स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर, ठीक है। तो अब ये बात फिर वही बात आ गई कि वस्समाई बनैनाहा बिअय्यिदिन व इन्ना लमुसीऊन। हो सकता है अरबिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अरबिक यहाँ पे इतनी अच्छी लिखी हुई नहीं आती जैसे कुरान में मौजूद होती है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई, एंड हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद द स्ट्रेंथ, यानी एक पावर से इसको हमने इसको एक ताकत से खल्क किया। अब इतना पुराना वाक़या कुरान में कैसे मौजूद है, सोचने वाली बात है। अगर यानी ये अगर अल्लाह ने किया है तो इसका मतलब उसको उसी रब को ये बात मालूम हो सकती है कि ये वाला वाक़या हुआ है, और ये बात कहलाती है बिग बैंग, जो कि कुरान में मौजूद है। अब अगर किसी साइंटिस्ट ने लिखा है, अगर किसी बंदे ने लिखा है, तो उसको यकीनन इस बात का इल्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, साइंस ने इतनी तरक्की की ही नहीं थी उस टाइम। तो फिर ये वाक़या कैसे कुरान में मौजूद है? और कुरान सबको मालूम है कि कुरान जो बना है, कुरान जो नुज़ूल हुआ है वो तकरीबन 1400+ ईयर्स अगो है। आइए मज़ीद बात करते हैं। मूव टू द थर्ड टॉपिक, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द ओरिजिन, ठीक है। कुरान में एक आयत मौजूद है कि ना सूरज के लिए सज़ावार है कि वो चांद को पकड़ ले, ला शम्स यंबग़ी लहा वाली आयत, ये सूरह यासीन में मौजूद है। सूरह यासीन कुरान में मौजूद है ये, और मेरे ख्याल से शायद 22वें या 23वें पारे में मिल जाएगी, 22वें पारे के एंड में ये बात मिल जाएगी आपको। ना सूरज के लिए सज़ावार है कि वो चांद को पकड़ ले, और ना ही रात दिन पर सबकत ले सकती है, वो सब एक एक मदार में तैर रहे हैं, और ये बहुत बेहतरीन आयत है। ना सूरज के लिए सज़ावार है कि वो चांद को पकड़ ले, यानी सूरज और चांद में ख़ास डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलो खैर, ये बात तो आम बंदे को भी देख के पता चल सकती है, सूरज और चांद में ख़ास डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है। अगर यूँ हो रहा है गुरूब तो इसमें एक ख़ास डिस्टेंस है, दोनों चीज़ें मिल नहीं रही, एक एक टाइम पर तुलू हो रहा है, एक एक टाइम पर गुरूब हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये बात को सब एक एक मदार में तैर रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट का तस्करा हो रहा है। अगर आप में से कोई फिजिक्स जिसने पढ़ी हो उसको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का तो इल्म हो गई। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो रोटेशनल नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन की हो रही है। मैं थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चला गया हूँ। तो सब एक एक मदार में तैर रहे हैं, यानी सब एक एक मदार में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक तरीके से गौर करें तो इसमें एक सबसे पहले कोपरनिकस थ्योरी आती है, जिसमें पहली बार प्रूव हुई जब बहुत से लोग इस आयत पर मतलब हंसते थे, लेकिन जब ये बात स्पेस में जाके लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा, तो उन्होंने एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल, मेरे पास इसकी स्पेलिंग आता है होलियोसेंट्रिक लिखा हुआ है, ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल है जो कि 16वीं सेंचुरी में आया, जिसने ये बात प्रूफ की और आज सबके सामने ये बात प्रूव है। अब कुरान में कैसे ये डिस्कस हो गया, ठीक है। थ्रू डिफरेंट स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ताहम ज़रूरी नहीं समझता है कि इसको ज़्यादा डिस्कस करूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबको ये बात मालूम है, ठीक है। तो आइए ज़रा अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, द अपोलो प्रोग्राम मिस्टर नील। अब ये बात प्रूफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको प्रूफ समझा जाता है, और काफ़ी हद तक इसको प्रूफ समझा जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारे लिए ज़रूरी और नेसेसरी ये नहीं है कि वो बात कितना 100% प्रूव्ड है या नहीं है। नेसेसरी ज़रूर है, 100% प्रूव होनी चाहिए, अच्छा है कि यकीन में इजाफा होता है। लेकिन क्योंकि हम बंदे हैं, हम कोई नबी नहीं है या पैगंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ अभी मालूम नहीं है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसको जब पैदा किया तो वो एक जाहिल मुतलक था, यानी वो कुछ नहीं जानता था। जाहिल से मुराद बुरा नहीं, अल्लाह के नज़दीक जाहिल से मुराद बंदा कुछ जानता नहीं था, बंदे को कुछ इल्म नहीं था। तो बंदे को चाहिए कि बंदा इल्म हासिल करे और अपने ईमान को एक बुलंदी तक पहुँचाए। तो आइए अपना आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। द अपोलो प्रोग्राम मिस्टर नील। यस, अपोलो प्रोग्राम के मेन एस्ट्रोनॉट मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक बहुत ब्रेवरी के साथ अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने जब स्पेस में कुछ स्ट्रेंज वॉइस सुनी। अब इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मैं अकेला, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, मतलब एक ये जो स्ट्रेंज हो गया और ये थोड़ा सा ऐसे भी चीज़ें हो गई, इससे थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि ये वाक़या मेरे साथ बहुत कुछ बार हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इससे डरता हूँ, और इसी टाइप के बहुत वाक़यात मेरे साथ हुए, इनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खला, अब जाहिर सी बात है मुझे एक्यूरेट अल्फाज नहीं पता, लेकिन उससे मुराद खला ही है। ये इस वक्त मैं जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ ये हदीस के मफहूमी अल्फाज हैं, ना कि बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज, ठीक है। यानी बस मफहूम वाज़े करना है मुझे। तो खला में फरिश्तों की आवाज़ सुनी जा सकती है, हदीस के मुताबिक ये मफहूम है, ठीक है। अब मैं तेज़ी से आगे बयान करता हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी भी लो हो रही है। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बात इम्पॉसिबल है कि आपको स्पेस में कुछ वॉइस सुनाई दे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको वॉइस सुनने के लिए आपके पास मीडियम का होना ज़रूरी है, कि वॉइस की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करें, और ट्रैवल करते हुए वो आपके कानों में आए, और देन आपके कान उस वॉइस को डिटेक्ट करेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि ये बात क्या थी और ये किस चीज़ की वॉइस थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वेव जो है वो मेरे माइक तक जाएंगी, और फिर वो माइक उसको डिटेक्ट करेगा, एंड देन वो रिकॉर्ड होंगे, और देन रिकॉर्ड होकर मैं इसको वीडियो में एडिट करूँगा, वीडियो से आप सुन रहे होंगे, आपके कान में जारी होगी। इस सब चीज़ों के लिए एक मीडियम ज़रूरी है, मीडियम जिसमें वॉइस ट्रैवल करे। अगर मैं थोड़ा सा और डीप में चला जाऊँ, अगर आप पानी है, पानी में आपको वेव्स ट्रैवल करवानी है, तो आप पानी को हल्का सा हिलाएंगे तो पानी में वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका हिलाना एक वेव्स है, और मीडियम क्या है? पानी। लेकिन स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक मीडियम मौजूद नहीं है,
और स्पेस में जहाँ पे मीडियम नहीं होता वहाँ पे वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन ये बात फुल प्रूफ है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नासा के चैनल पे ये बात मौजूद है कि मैंने कुछ स्ट्रेंज वॉइस सुनी। स्पेस में फरिश्तों की आवाज़ों को सुना जा सकता है। अगर फरिश्ते हैं तो फिर फरिश्तों का खुदा भी होगा, ठीक है। तो ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियलिस्टिक मीडियम का होना ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है अगर वैक्यूम है तो आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, फरिश्ते मौजूद हैं। और ये मेरा आखिरी था, मेरा जो प्रूफ था, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ हैं, ऐसे प्रूफ जिनको सुनकर शायद अथीज़म शायद बहुत कम हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला एक और बड़ा प्रूफ है, और भी बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि मैंने जमा करके रखे हैं, लेकिन वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश है मेरी कि और भी एक्सप्लेन करूँ और दूसरे चैनल पर लेक्चर्स भी डालूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और एक और बड़े प्रूफ के लिए इंतज़ार कीजिए, और बहुत सारे प्रूफ्स के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।